Assalamu alaikum. My name is Hina Sehrish and I am from 8th semester. Let's start our topic. The topic which is given to me is under the heading of the external method of quality assessment. So there are the content and let's explain in this assignment. Here is a quality assessment, the definition, their goals, and then the benefits of quality assurance. It has two types: internal method of quality assessment and external method of quality assessment. But we have to explain the external method of quality assessment. It has a definition, methods, rechecking and retesting, proficiency testing, on-site monitoring. And here are the some explanation of these subheadings, and then the comparison of these methods, PT for the proficiency testing and the rechecking, summary of this comparison, and then we have to face some managing EQA in the laboratory system, in which the participation in the EQ is must, and then the management processes. For next, there are the some handling of samples, analysis, appropriate recording, investigation of deficiencies, taking corrective actions when performing is not acceptable. EQA performance problems, and it has a three subheading: pre-examination, examination, pre-examination, and post-examination, and then you have to conclude in the heading of key messages. And there are the some references from which I get these data. So let's explain our assignment. Here are the quality assessment. The quality assessment, that the question arises, what is quality assessment? So the quality assessment is a directive of quality control. It is necessary but not sufficient, and the data is obtaining and maintaining for an analysis in a state of statistical control. And you have to see in front of this that the special cause of the variation जो है वो हम इसको remove कर देते हैं. Only common variations are under the topic or under the observation. Then the definition is the process of easily and easy to make it easy and define the goals is called the quality assessment regarding the product design, development, and the production. There are the some goals of the quality assessment. The main is the statistical control. For this, the loss of statistical control, systematic system moved out of it and reached to the statistical control. करेक्ट एक्शंस जो लेना वो भी इसके अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. उसके बाद हमारे पास प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स आते हैं. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स के लिए हमारे पास हैं कि हमने सबसे पहले के जो हमारे पास प्रॉब्लम है हमने उसको ट्रैक करना है और उसको रिजॉल्व करना है, एंड प्रोडक्ट को उसके बाद रिलीज़ करना है. सबसे पहले ट्रैकिंग और रिजॉल्वेशन ऑफ रिजॉल्व इन एडिक्वेंसी वगैरह करके. उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करना है कि आफ्टर असाइनिंग द डिस्टिंक्ट क्वालिटीज़, ऑर्गेनाइजेशन शुड बी इंक्रीज द रियलेबिलिटी एंड द कॉन्फिडेंस ऑफ द कस्टमर. लाइक अगर आपके पास चीज़ अच्छी होगी तो कस्टमर का जो कॉन्फिडेंस है वो आप उसको ईज़िली जो है गेट कर सकते हैं. लाइक आप उसको ईज़िली अपनी प्रोडक्ट को लेने के लिए कायल कर सकते हैं कि इसके अंदर ये गुड क्वालिटीज़ मौजूद हैं. कब जब आपके पास उसका एक अच्छा क्वालिटी असेसमेंट जो है वो हुआ होगा. उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट हमें क्या देती है कि प्रोडक्ट दैट कंटिन्यूली हाईली क्वालिटी अप टू द स्टैंडर्ड. एक स्टैंडर्ड किसको कहते हैं कि वो प्रोडक्ट और सर्विस जो फिट हो किसी भी पर्पज़ के लिए. द प्रोडक्ट शुड बी फिट. The insurity of that product and services are fit for this purpose. और ये जो चीज़ें हैं ये हमारे पास जो कॉन्फिडेंस है कस्टमर का उसको इंक्रीज़ करने में ऑलवेज़ हेल्प आउट करती हैं. उसके बाद हम कुछ बेनिफिट्स की तरफ चलते हैं कि हमारे पास क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं क्वालिटी अश्योरेंस के. तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सबसे पहले तो कस्टमर की डिमांड्स को जो है वो फुलफ़िल करती है. उसके बाद अगर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं तो जितनी ज़्यादा क्वालिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट जो है वो गुड होगी उतना ज़्यादा जो ट्रस्ट है वो इन्हांस होगा. और जितनी ज़्यादा आपकी प्रोडक्ट अच्छी होगी उतना ज़्यादा जो है मार्केट में आपका जो है एक नाम होगा, आपका कंपटीशन ज़्यादा होगा और आपकी जो सेल्स हैं वो सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगी.
इसके अलावा ये हमें देती है सेफ कॉस्ट एंड फिक्सेस इश्यूज़। हमारे पास कम कॉस्ट के अंदर या हमारी कॉस्ट को ये बचाती है और हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जो है कि कौन सा प्रॉब्लम कहाँ पर आ रहा है उसको ये हमें सॉल्व करने के लिए हेल्प आउट करती है, इससे पहले कि कोई एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम जो है वो हमें फेस करना पड़े। उसके बाद वो कहता है कि मैं क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है उसको मेंटेन करती है। अभी मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड क्या होता है, कि जो ऐसा प्रोडक्ट दैट इंश्योर्स अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर फिट फॉर दिस पर्पज़। जो चीज़ जिस जगह पे कैसे फिट होती है उसके लिए अगर वो बेस्ट है तो वो एक आपका क्वालिटी स्टैंडर्ड बन जाता है। उसके बाद क्या है कि जितना इन्वेस्ट करेंगे उतना ही बेनिफिट आपको मिलेगा। और क्वालिटी असेसमेंट जो है वो एक गुड और राइट वे है जो हमें कॉन्फिडेंस सेल्स जो है उसको इंक्रीज़ करता है और डाउट्स को उसी लिहाज से डिक्रीज़ करता रहता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास दो तरह की टाइप्स हैं। IMQA that is for the internal method of quality assessment and EQA for the external quality assessment। अब इंटरनल की जब हम बात करते हैं तो ये इंटरनल का मतलब है कि एक स्पेसिफिक जगह पर ही ये काम होना है, उसके बाहर ये काम नहीं होना। जैसे कि आप लेबॉर्ट्रीज़ को जानते हैं, लैब्स को जानते हैं, जहाँ पर ये सारा कुछ होता है और वो एक लिमिटेड प्लेस के अंदर होता है, मतलब बाहर नहीं होता। लेकिन जब हम एक्सटर्नल की बात करते हैं तो वो आप मुख्तलिफ़ जगह और मुख्तलिफ़ लेबॉर्ट्रीज़ आप कह सकते हैं कि एक इंटरनल लेबॉर्ट्री अपने प्रोडक्ट्स को एक्सटर्नल लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर भेजती है और उसके मुख्तलिफ़ तरह के टेस्ट होते हैं, वो मुख्तलिफ़ प्रोसेस से गुजरता है और फिर वो एक बेस्ट प्रोडक्ट को वो रिलीज़ करने के काबिल हो जाते हैं। इसी तरह जब हम देखते हैं कि जो हमारे पास EQA है, कि हम ये कह रहे हैं कि वो एक आउटसाइडर टेस्टिंग हमारे पास एश्योरेंस है। हमारे पास एक ऐसी चीज़, एक ऐसा प्रोसेस जो हमें एक्सटर्नल क्वालिटी को एक्सटर्नल साइट पर क्वालिटी को चेक करने में हेल्प आउट करता है। तो हम आगे देखते हैं कि चलें अब हम आगे देखते हैं कि हमने जो है सॉरी ये इधर था, हाँ। तो हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं या हम देखते हैं कि पहले EQA है क्या। EQA है कि एक ऐसा लेबॉर्ट्री को, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि चेकिंग द लेबॉर्ट्री परफॉर्मेंस यूजिंग एक्सटर्नल एजेंसी, मतलब एक आउटसाइडर जगह का इस्तेमाल करते हुए किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करना जो है वो एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट में आता है। इसके अलावा हम यहाँ पे है कि जी इसके 3 तरह के मेथड हैं, रीटेस्टिंग, रीचेकिंग। रीटेस्टिंग इज़ ऑल्सो नोन एज रीचेकिंग, प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग एंड ऑन साइट मॉनिटरिंग। सबसे पहले हम रीटेस्टिंग और रीचेकिंग को देखते हैं कि रीटेस्टिंग और रीचेकिंग होता क्या है। Slides that have been read are rechecked बाय रेफरेंस लेबॉर्ट्री। जौन सी लेबॉर्ट्री का रेफ़र किया जाता है वहाँ पर जो रीडिंग और चेकिंग होती है वो जो है वो एक टाइप है या वो एक मेथड है एक्सटर्नल क्वालिटेटिव असेसमेंट की। इसके अलावा दूसरी लेबॉर्ट्रीज़ के साथ इसका जो है इंटर लेबॉर्ट्री को कंपैरिजन किया जाता है, रिजल्ट्स को कंपेयर किया जाता है। प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग के अंदर क्या आता है जी, कि प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग आखिर होती क्या है। तो प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग के एक एक्सटर्नल प्रोवाइडर जो है वो अननोन सैम्पल टेस्टिंग के लिए भेजता है किसी भी लेबॉर्ट्री को टेस्ट करने के लिए, एंड द रिजल्ट्स ऑफ ऑल लेबॉर्ट्रीज आर एनालाइज्ड। प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग के अंदर तमाम लेबॉर्ट्रीज़ को पहले सैंपल भेजा जाता है, फिर उन तमाम लेबॉर्ट्रीज़ के सैंपल के रिजल्ट को एनालाइज किया जाता है, कंपेयर किया जाता है और फिर रिपोर्ट तैयार की जाती है एट दी एंड। और उसके बाद उसको कंपैरिजन किया जाता है उसका एक स्टैंडर्ड के साथ। कोई भी स्टैंडर्ड जो है वो हमारे पास किसी भी चीज़ के लिए जो है वो हमारे पास मौजूद होता है, हम उसको उसके साथ कंपेयर करते हैं और हमें पता चल जाता है कि गुड है या बैड है। उसके बाद ऑन साइट मॉनिटरिंग में देखते हैं तो ये तभी हम इसको करते हैं व्हेन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंडक्ट ट्रेडिशनल प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग और टू यूज़ द रीचेकिंग और रीटेस्टिंग मेथड। अगर हमारे पास प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग करना मुश्किल हो जाए
रीचेकिंग और रीटेस्टिंग करना भी मुश्किल हो जाए, लाइक हमारे पास कॉमन मेथड्स को यूज़ करना मुश्किल हो जाए, तब हम ऑन साइट मॉनिटरिंग का इस्तेमाल करते हैं या हम उसकी हेल्प लेते हैं। उसके बाद हम कंपैरिजन करते हैं कि हमारे पास पीटी और आरसी में क्या कंपैरिजन है। तो इंटर लेबॉर्ट्री कंपैरिजन जो है वो प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग उसके अंदर होती है और रीचेकिंग भी होती है। सिमुलेटेड सैंपल्स की बात करते हैं तो पीटी यानी प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग के लिए वो येस है, और लेकिन रीचेकिंग वहाँ पर नहीं होती। रियल सैंपल्स जो हैं वहाँ पर, जहाँ पर हमारे पास रियल सैंपल्स का टेस्ट चल रहा है, वहाँ पे इट मे बी पॉसिबल कि वहाँ पर प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग हो या ना हो, बट रीचेकिंग वहाँ पर लाजमी होती है। टाइम एंड रिसोर्स नीडेड जो है प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग के अंदर टाइम कम लगता है, जबकि रीचेकिंग जो है वो ज़्यादा लगती है। जब एक काम हम दोबारा करेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पर टाइम ज़्यादा लगेगा। एनालाइट इवेल्युएटेड, कोई भी एनालाइट है उसको इवेल्युएट करना है, प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग को काफ़ी दफ़ा किया जाता है जबकि रीचेकिंग को कम टाइम्स में किया जाता है। अगर अब हम समरी देख लेते हैं इसकी, तो प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग जो है वो गुड ऑब्जेक्टिव मेजर है, इसको ऑर्गेनाइज़ किया जा सकता है। डिफरेंट टेस्ट होते हैं लैब्स के, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है और यूज फ्रिक्वेंटली। अगर हम रीचेकिंग को देखें तो यहाँ पर यूज़फुल ओनली व्हेन डिफ़िकल्ट एंड इम्पॉसिबल टू फेस्ट ऑल द सैम्पल टेस्टिंग प्रोसेसेस। एक्सपेंसिव कम ज़्यादा है और लेकिन यूज़ कम होती है। जो चीज़ एक्सपेंसिव ज़्यादा होती है वो बहुत कम यूज़ होती है। अगर हम आउटसाइड इवैल्यूएशन की बात करें तो ट्रू पिक्चर ऑफ लैब ओवरऑल परफॉर्मेंस, अगर ऑन साइड इवैल्यूएशन है वो क्या है कि हमें एक एग्जैक्ट पिक्चर दे देती है। गिव गाइडेंस वेयर नीडेड, जहाँ पर भी ज़रूरत होती है वहाँ पर हमें गाइडेंस मिलती है। कॉस्ट ज़्यादा होती है, टाइम ज़्यादा होता है। How to manage the equities in the laboratories? All labs should participate for testing. हर लैब्स को कंसीडर किया जाता है कि यहाँ पर हम अपना टेस्ट प्रूव करें, परफॉर्म करें और क्या बेनिफिट होता है। फिर रिजल्ट्स को या कंपेयर किया जाता है अदर लैब्स के साथ। इसके अलावा हमारे पास एक्रीडेशन के लिए इक्वे पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन, ऐसा इंटरनेशनल जो है जो इंडिपेंडेंट असेसमेंट हो मेडिकल लैब से, वहाँ पर जो है वो क्वालिटी असेसमेंट को यूज़ किया जाता है। स्पेसिफाइज द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड पर्टिकुलर टू द मेडिकल लैब्स, ये हुआ था 15189 में, इंडिपेंडेंट असेसमेंट ऑफ द मेडिकल लैब। इसके बाद हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू ISO जो है इक्वे क्या है कि इट इस्टेब्लिश द इक्वे कैन बी अल्टरनेट एक्सचेंज ऑफ द सैंपल विद अदर लैब्स, उसी सैंपल को दूसरे लैब्स में भेजकर उसके साथ एक्सचेंज किया जाता है। लैब मैनेजमेंट शेल मॉनिटर रिजल्ट्स, जो लैब का मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो रिजल्ट्स को मॉनिटर करता है और गुड एक्शंस और करेक्ट एक्शंस को लेते हुए। मैनेजमेंट प्रोसेसेस को अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर 4 टाइप्स हैं। उसके अंदर क्या है जी कि सबसे पहले हमने जो है लॉग करना है प्रोसेस को प्रॉपरली। हैंडलिंग क्या होता है कि हमने एक गुड हैंड के अंदर या एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन को हम लोगों ने अपना सैंपल देना है। उसके बाद गुड प्रोसेस होना चाहिए और उसको स्टोर किया जा सके। एनालिसिस करते हैं अगर हम किसी सैंपल का, तो EQ सैंपल शुड बी टेस्टेड एंड देन do not recognize as a different blinding test, और ब्लाइंडेड टेस्ट होना ज़रूरी है। इसके बाद हमें अप्रोप्रिएट कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ ऑल टेस्ट, तमाम टेस्ट को जो है वो रिकॉर्ड किया जाए। लॉन्ग टाइम रिपोर्ट मेंटेन की जाए, जितना जितना काम हुआ उसकी तमाम की रिपोर्ट हमारे पास मौजूद होनी चाहिए। परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट कैन मैयर, मतलब जो भी परफॉर्मेंस है वो किस तरह से इम्प्रूव की जा रही है उसको भी हम लोगों को देखना है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ एनी डेफिशिएंसी, कोई भी कमी रह गई है तो उसके बारे में हमें ज़रूर जांच पड़ताल करनी है। परफॉर्मेंस को चैलेंज किया जाता है कि जो एक्सेप्ट ना हो, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि प्रॉब्लम को डिटेक्ट करते हैं और ये मौका देते हैं कि वो हमें जो है उसको प्रोसेस को वो इम्प्रूव करे, और इनको हम करेक्टिव एक्शंस कह सकते हैं। हम करेक्टिव एक्शंस उन्हीं को कहते हैं जिनसे जो काम हुआ है वो बेटर टू बेटर जो है वो स्टेज पर चला जाए।
प्रॉब्लम्स हमें क्या फेस करनी पड़ती हैं कि प्री एग्जामिनेशन सैम्पल शुड हैव बीन कंप्रोमाइज्ड, इम्प्रॉपर हैंडलिंग और स्टोरेज की वजह भी बन सकता है, लेबल्ड इम्प्रॉपरली इन द लैब. Examination and metrics effect in examination system, reagent, instrument, the test methods, and post examination is report, and then it may be confusing. results जो होंगे वो फिर incorrect होंगे. सही है. इसके बाद हमारे जो की मैसेजेस हैं वो हमें की मैसेज क्या दे रहा है कि EQA uses valuable resources. EQA should have punitive. It should be viewed as educational and used as a tool to help the direct improvement efforts in the laboratory. EQA is one of the critical element of the laboratory quality management system, and these all data are from the some of the help of YouTube or some of the help of Google, with the help of the website LQMS and assessment EQA PDF that I used from there. Thank you so much. Jazakallah. Allah Hafiz.